So hello students, welcome to OTS. So I have collected the queries related to the TA batch. So those who are aspiring for the PIB interview, there were a lot of queries which I collected from that the PIB group. You can say that our group, as well as some general queries asked by the candidates who contacted us. So these are the list of general questions which many of the candidates have put up. I have collected it. I am going to address all these queries one by one. तो बड़ा शॉर्ट में और टू द पॉइंट रखूंगा, राइट? इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना बिकॉज दीज आर वेरी माइनर इश्यूज एक्चुअली. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस जनरल क्वेरीज रिगार्डिंग पीआईबी. वन कैंडिडेट हैज आस्क्ड, मैंने आई क्लब्ड एक्चुअली दिस क्वेश्चन, प्राइवेट जॉब इन एप्लीकेशन फॉर्म. ऐसा है, you know the query was that he has mentioned I am doing private job in original application form. Can he change now? Right, so you might have received the mail from PIB, right? So you have qualified and this is the next application form you have to apply. If you have not received, you will, so don't worry about that. Those who have not received till date, you will receive the mail. They will not skip you, so don't worry about that. When you receive the mail, you will get the template, that is again the same application form which you have filled. You need to fill it again. What you have filled in the earlier one, that is original online form, forget it. Fill it again. You were in private job, now you can just fill you are gainfully employed, you are doing your own job, something else, freelancer, you are just earning. You cannot write I am completely unemployed because this was for gainfully employed. They don't care whether you were in private job, you left the job. That's a possible scenario. Let's suppose you were in private job at the time you applied originally for the TA, but now you switched on, you are now working on your own terms, you are doing freelancing, you are earning, you are farming, no issues, you are earning at least, right? So you can definitely change that in the next form, right? तो पहला काम हो गया आपका, आप चेंज कर सकते हैं. टेम्पलेट कहां से मिलेगा? टेम्पलेट दे विल गिव यू एन ईमेल, और आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपके मेल में ये मेंशन है, राइट? एनओसी इश्यूज, राइट? सो देयर आर सम गाइज हु आर वर्किंग इन लेट्स सपोज सपोर्ट सिस्टम, आईटी, आईटीईएस, प्राइवेट फर्म, जो शायद एनओसी नहीं देंगे आपको, मोर और लेस. दिस इज जनरल थिंग, राइट? which many candidates are facing. No issues. आप एनओसी नहीं लोगे तो भी आपको पीआईबी इंटरव्यू से भगाया नहीं जाएगा, राइट? यू कैन आस्क दैट you ask for the date, okay, give me time, I will submit it later on. First face the interview, right? So NOC is not the criteria कि इसके कारण आपको इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा, so don't worry about that, right? So इसका एक सोल्यूशन ये था which many candidates are actually doing. They are now writing it as gainfully employed. So not a worry, you can do this, but I cannot suggest to cheat on the camera. मैं कैमरा पे ये तो नहीं बोलूंगा ना कि आप फर्जीवाड़ा कर दो कि आप एम्प्लॉयड हो बट गेनफुली. सो इट्स अप टू योर विजडम, बट दैट्स अ पॉसिबल सिनेरियो. यू कैन जस्ट सो यू आर ए सेल्फ एम्प्लॉयड. आप उसको एफिडेविट पे जो टेम्पलेट है उसमें भरेंगे, बिकॉज दे आर जस्ट वांटिंग दैट यू हैव योर ओन सोर्स ऑफ इनकम, दैट्स इट. इससे उनको बहुत मतलब नहीं. इफ यू आर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, देन यू हैव टू गेट एनओसी, दैट्स मैंडेटरी, राइट? बिकॉज उनके परमिशन के बिना आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते ना. दे नीड टू नो. गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में तो दे नीड टू नो, राइट? सो कैन यू चेंज? आई ऑलरेडी सेड यस, यू कैन चेंज इन दिस. पहला क्वेश्चन डन. नो जॉब वर्सेस गेनफुली एम्प्लॉयड. देयर आर सम कैंडिडेट्स जो शायद एम्प्लॉयड नहीं थे बट उन्होंने टीए का एग्जाम दिया, दे हैव गॉट कि यस पीआईबी, तो आपने एक तरह से वहां पे कुछ भी लिखा जिसके बेसिस पे आपने एग्जाम क्वालिफाई, नो इश्यूज. यू कैन राइट डाउन नाउ जो आपका सर्टिफिकेट आया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला, आप लिखो गेनफुली एम्प्लॉयड. लेट्स सपोज यू आर अर्निंग 50,000 पर ईयर, नो प्रॉब्लम. आप लिख दो कि ये आई एम अर्निंग 50,000 और 60,000 पर ईयर एज ए ट्यूशंस है, एज ए फॉर्मल कोई कैजुअल सा काम करते हैं, मतलब पार्ट टाइम, नो वरी, दैट्स ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इनकम. आईटीआर तो कोई भी भर सकता है ना, चाहे उसकी इनकम 5,000 है साल की, डजंट मैटर, यू कैन. इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट शोज दैट यू हैव अर्नड दिस मच अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, राइट? सो नॉट ए वरी. आप नो जॉब भी है तो आप गेनफुली एम्प्लॉयड. आप फार्मर है, एक बच्चे का मैसेज आया था, वैसे सर मेरी फार्मिंग है, 40-50 हजार बनता है, आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरेंगे? बहुत मतलब यू नो देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल ऑलरेडी ऑन द इंटरनेट. इट्स वेरी सिंपल. नाउ गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी सिंपल. आप आईटीआर 1 भरेंगे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या आपकी आप लमसम अर्निंग दिखाना. जैसे लेट्स सपोज आई एम ए फ्रीलांसर, right? So I fill it around, let's suppose you know I have around 8 lakh or 9 lakh annual XYZ thing, right? So they are not going to ask you किस सोर्स से है, किस कोचिंग से है, किस यूट्यूब से है, ऐसा कुछ नहीं, right? Salary slip issue, so they are not worried about your salary slip. ITR is sufficient.
राइट. दे विल नॉट आस्क यू गिव अस द सैलरी स्लिप. तो सैलरी स्लिप देना मैंडेटरी नहीं है. दिस इज द लीगल डॉक्यूमेंट विच दे विल आस्क फॉर, राइट. इसको आप लगाएंगे भी तो उनको कोई परवाह नहीं है, आप लगाएंगे वो हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको इससे. नेक्स्ट, fitness certificate, that is health certificate, which they have mentioned in the mail. You can get it from any of the registered MBBS, whether it is government or private, right? You can get it from the private doctor as well on the letter pad. Yes, this check was done and all is well. It's easily available. आपको, I cannot say that कि आप बिना check कराए बनाए, right? I cannot suggest on camera as well. But you know that it's quite easily done. Fitness certificate आप किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर एमबीबीएस से आप स्टैम्प, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर होती है वो लगी होनी चाहिए. नॉट ए वरी. एक्चुअल फिटनेस टेस्ट और आपका मेडिकल तो एसएसबी में होना ही है, राइट. सो दिस इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी कि यस यू आर फिट ऑन द डेट. इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी, वहां कुछ अगर ऐसा वैसा होता है बाई चांस, तो उनको पता हो कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आया था. दैट्स इट. इसलिए वो फॉर्मेलिटी है, वो मांगते हैं. उन्होंने एसएसबी में फिर आपका मेडिकल करना ही है वैसे भी, इफ यू मूव ऑन फ्रॉम पीआईबी टू एसएसबी. नेक्स्ट, ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन. एक बच्चे ने पूछा कि दे हैव जॉइंड ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट में ज्वाइन किया है, कोई गवर्नमेंट में, बैंक में, इज ऑन प्रोबेशन पीरियड. तो जिसमें उनको कोई आई कार्ड नहीं मिला बट कोई रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है. नॉट ए वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपने भरा होगा, लेट सपोज कि सेल्फ एम्प्लॉयड या गेनफुली एम्प्लॉयड, दैट्स इट. देयर इज नो नीड ऑफ आईडी कार्ड एक्सेस. आपके कोई आईडी कार्ड नहीं मांगेगा अनटिल एंड अनलेस कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय. ओके, सो इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है. डोंट वरी अबाउट दिस. आप जाइए कि पिछले साल आप गेनफुली एम्प्लॉयड थे या अभी है, लमसम दिखाओ, दैट्स इट. डोंट वरी अबाउट कि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है, मेरे पास वो ऑर्गेनाइजेशन ने एनओसी नहीं दिया. ये सब टेंशन की चीज नहीं है. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड पीआईबी वर्सेस एसएसबी डेट्स, राइट. सो नाउ दिस इज जस्ट ए गेस बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स. I personally feel that PIB will be held only after 10th or 12th of January. इससे पहले होना मुश्किल लग रहा है मुझे, ड्यू टू दैट इंसिडेंट एज वेल. अलॉन्ग विद दैट 20 डेज का गैप तो उनको देना ही पड़ेगा जब वो मेल करेंगे. सो एकाएक आपको नहीं बुलाते. दे विल गिव यू सम टाइम टू प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल, विच आई हैव मेंशन्ड इन द प्रीवियस वीडियोस एज वेल. आई हैव मेंशन्ड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स द प्रीवियस. आपके मेल में भी अटैचमेंट में लिखा हुआ है विच डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू हैव, राइट. एसएसबी डेट्स तो आई एम श्योर दैट इन दोनों के बीच में पीआईबी वर्सेस एसएसबी डेट मिनिमम 40 डेज का गैप होगा. सो एट एनी कॉस्ट एसएसबी इज नॉट गोइंग टू बी हेल्ड बिफोर 20 ऑफ मार्च एट एनी कॉस्ट. इट कैन बी डिले, वो आगे भी हो सकता है बट पहले नहीं होगा. यू हैव इनफ टाइम. आप अपना जॉब करते रहे, आप अपने को जो बेसिक चीजें होती है अपने को थोड़ा बहुत फिट कर लिया, दैट्स इट, राइट. ये सब पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट है, इसके लिए बहुत हाईफाई नॉलेज की जरूरत नहीं है, राइट. सर्विस सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल एंड पीएसयू, यस दैट्स मैंडेटरी. डिपार्टमेंट इश्यूज दैट. आपके जो हायर अथॉरिटी है वो करते हैं. सेंट्रल और पीएसयू एज वेल स्टेट गवर्नमेंट में जो गेस्टेड है उनके लिए भी चाहिए होता है, राइट. तो आपको ये डिपार्टमेंट से मिलेगा. दिस इज काइंड ऑफ एनएसयू एक्सेल. आपने इतने दिन सर्विस कर रखा है, एक प्रूफ टाइप का होता है. आईडी कार्ड इज नॉट ओनली द सर्टिफिकेट. आईडी कार्ड एक पास है बट वो सर्टिफिकेट नहीं होता कि आपने क्या किया. नेक्स्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एफिडेविट. यस, when you receive the mail you will have the template. Okay, these are the wordings which have to be typed on the affidavit. 20 rupees stamp paper, maybe 50 rupees, जो भी आपको लगे. जो लोएस्ट वन है 10 रुपए का, उससे भी कर सकते हैं, राइट. सो स्टैम्प पेपर पे वो लिटरली वही टेक्स्ट नोटरी आपको टाइप करवा देगा. यू विल अटेस्ट इट, दैट्स इट. आप साइन करेंगे, दैट्स इट. इतना ही करना है. ये 1 घंटे का काम है. आपके नियरेस्ट कोर्ट कचहरी जो भी है, आप वहां जाके सेम लाइन आपको टाइप करानी है जिसमें लिखना है आई डिक्लेयर दैट दिस and my total earning is this one. You have the text with you. आपके उस जो एसएसबी लेटर आपको मिला है, सॉरी जो पीआईबी लेटर का जो मिला है उसमें ये चीज लिखी है, वही वर्डिंग आपको टाइप करा के रखना है, दैट्स इट. ओके. कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, दैट इज सेल्फ सर्टिफिकेट, मतलब आपको खुद से ही साइन करके देना है. तो इसमें बहुत बड़ा इशू है नहीं. मोदी जी ने ये काम हटवा दिया था. पहले क्या था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट गेस्टेड ऑफिसर से साइन कराना होता था. अब सेल्फ सर्टिफाइड चीजें चलती है, बहुत अच्छी चीज है, right. So these were the 9 queries which I received in general. If there is anything else, इसके अलावा और कुछ है और बाई चांस में मिस हो गया हो तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, राइट. सो आई वाज जस्ट कलेक्टिंग नाउ बिकॉज एक एक करके रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है. नेक्स्ट, the students ask, can you guide me, right? To be honest, what you need to do is what you have done till date, that is your personality based test. It's an interview. जो आप PIQ फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर्स में लिखोगे, 80% ऑफ द इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन दैट. आई डोंट नो व्हाट योर हॉबी इज. तो आपको PIB का टेम्पलेट मैं शेयर कर दूंगा. आई विल शेयर द PIQ टेम्पलेट विच यू माइट हैव ऑलरेडी, आई एम श्योर.
आपने उसमें ना सोच के भरना है कि आप क्या भरना चाहते हैं, योर हॉबी, योर एजुकेशन, व्हाट यू एस्पायर, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन, एक्स वाई जेड, एंड यू नीड टू हैव योर गुड आंसर रेडी फॉर दैट, राइट? A balanced, right? If you say that I am interested in cricket, you should know what exactly the XYZ of cricket, what is the weight of the ball. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो you should be ready for this random kind of questions. अरे ऐसा नहीं है कि आंसर ना देने से सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है. They will check upon your confidence. You have to present yourself. Yes, you are the mature material which they are looking for. That's it, right? And these days I am busy with the school and college campus sessions. And PIB is scheduled after 10th, more or less. So 25 onwards, 25 to 31st December, we'll be having this online interview session, right? So we have included one retired NDA brigadier, NDA alumni. He will be taking interviews of some selected ones, right? Although we will be having one-to-one, I will be filtering some students, which I feel that personally they are the genuine ones. Then the second round, I will try to have a session with him as well, right? One-to-one on Skype. बट आपको पीआई की फॉर्म में शेयर करूंगा, वो आपको भर के रेडी रखना है. व्हाट एल्स वी विल डू, विल बी शेयरिंग यू द लिस्ट ऑफ क्वेश्चनर्स वन बाय वन. जैसे 10 क्वेश्चन, पर्सनल, नेम बेस्ड और लोकेशन बेस्ड, एजुकेशनल बैकग्राउंड बेस्ड, हॉबी बेस्ड, योर जॉब प्रोफाइल बेस्ड. So I am categorizing these questions, so don't worry, we have time. These questions will be available to you by 25th. उसके बाद आपको टाइम दूंगा, आप PIQ भरेंगे, फिर हम will have one-to-one sessions so that we can grill you, we can let you know what can be the possibilities of n number of questions that they can bombard, right? So this is all about the brief which I wanted to share. I hope I have answered majority of your questions. If there is still any ambiguity, any queries, do share. You can just comment upon the video, below the video. I will try to revert back, right? So thank you, good luck.